A very good evening to everyone. The editorial that we are going to talk about today is related to electric vehicles catching fire. It is one of the burning topics nowadays. Many of the people are shifting to electric vehicles nowadays because the price of the petroleum product is going very high, because of which many of the people are trying to purchase or managing to purchase electric vehicles. But the problem nowadays is that the news that has come to us that has really surprised or created panic among the people who wants to buy electric vehicles. Suddenly it is reported that many of the electric vehicles are becoming prey to fire, and suddenly catching fire has become a problem for electric vehicles. In such a situation, many of the people, those who are shifting to electric vehicles, are thinking of buying now, and the market which was booming nowadays has come down, and it has come to a very bad phase. Now in this very editorial we shall talk about the situation because of which this problem is happening, and what are the circumstances or problems that is being created due to this problem. At the same time we shall talk about the solution to this very problem. So let me start this editorial with the heading first, and you must have seen the editorial's heading is no short circuit. Means it wants to give a message to the people that there must not be more short circuits, because once it happens again, many of the people will not think of buying this kind of electric vehicles, because this is not only the matter of money, it is matter of life of a person also. As you can see that it is written over here, on electric vehicles catching fire. This editorial will talk about electric vehicles catching fire. Now come to the next lines. Safety is an imperative. Imperative stands for important. Safety stands for सुरक्षा. सुरक्षा is an imperative, यानी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, and should be built into the cost and utility of electric vehicles. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उपयोगिता के साथ साथ कॉस्ट का ध्यान रखते हुए इसको बिल्ड करना चाहिए. यानी आपको ऐसे समझना है इसको कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सुरक्षा के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसका कॉस्टिंग का, और कॉस्टिंग के साथ साथ यूटिलिटी का. यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, और उपयोगिता पे हमें ध्यान देना चाहिए. उपयोगिता के साथ साथ उसके कॉस्टिंग के अंदर जो इसका बिल्डअप इस तरह से हो कि आपको सेफ्टी भी दे. A spate of incidents related to the burning of electric vehicles has resulted in the Union government announcing an expert panel to investigate the battery explosions causing them, and a few manufacturers recalling batches of electric scooters after some caught fire. Now try to understand the lines what has been written. A spate of incidents. A spate का मतलब होता है a number of, means many incidents related to the burning of electric vehicles, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जलने के कई इंसिडेंट्स लगातार इसकी झड़ी लग गई है, और इसके वजह से दिस हैज़ रिजल्टेड इन यूनियन गवर्नमेंट, जिसके वजह से जो केंद्र की सरकार है उन्होंने अनाउंस किया है कि एक एक्सपर्ट पैनल के द्वारा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए. क्या इन्वेस्टिगेट करना है? द बैटरी एक्सप्लोशंस काउजिंग देम एंड अ फ्यू मैन्युफैक्चरर्स, कि जो बैटरी में जो एक्सप्लोशन हो रहा है, और ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है. साथ ही कई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी गाड़ियों में आग पकड़ने की घटनाएं घट रही है, उन्होंने रिकॉल किया है, यानी वापस बुला लिया है अपने बैचेज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को, यानी उन सारे स्कूटर्स को जिसको उन्होंने लॉन्च किया हुआ है उसको वापस बुला लिया है. आफ्टर सम काउट फायर, तब जब कई ऐसे मामले आए फायर पकड़ने के. EV मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव इंक्रीजिंगली बिकम अ विएबल ट्रांसपोर्ट डिवाइस. हाल के दिनों में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं
वीएबल का मतलब क्या हो गया, ज़रूरी या व्यवहार्य एक ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस बन चुका था, विथ मोर देन 11 लाख इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन इंडिया। करीब 11 लाख इलेक्ट्रिक या कह लो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए हैं भारत में। ये डेटा कहाँ से आया, वाहन डेटाबेस अप्रैल 2022 का है। यानी इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बहुत ज़्यादा थी, एक अच्छे मार्केट में पकड़े हुए था। 11 लाख रजिस्टर्ड हमारे यहाँ ऑलरेडी व्हीकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। The increase in the utilization of EVs has also been largely helped by the significant reduction in cost of lithium-ion batteries. अब कह रहा है जो इंक्रीज़ हुआ है यूटिलाइजेशन में वो इसलिए हुआ है कि EVs में आपको बता दें कि जो बैटरी लगती है उसमें लिथियम आयरन का व्यवहार किया जाता है और इसके दाम काफ़ी घटे हुए हैं इस समय, और इसमें 89% 2010 के मुकाबले से देखें तो 89% की कमी आई है lithium battery में। With climate change concerns driving governments including India's to incentive the shift to EVs, क्लाइमेट चेंज के चिंता को देखते हुए भारत में जिसका शिकार भारत भी है वो एक इंसेंटिव दे रहा है। इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन दे रहा है कि आप जितना हो सके शिफ्ट कीजिए EVs की ओर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर, क्योंकि भारत को 2070 तक अपने आप को कार्बन मुक्त कर देना है। साथ ही ज़ीरो इमिशन का जो वादा किया गया है उसका 50% इसको 2030 तक कर लेना है। तो हमारे क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भी ये अच्छा था जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। आगे देखते हैं। देयर मैन्युफैक्चर फॉर कॉमर्शियल यूज़ हैज़ अंडरगॉन एन एक्सेलरेशन। इसका जो प्रोडक्शन था, मैन्युफैक्चर था कॉमर्शियल यूज़ के लिए, इसको भी एक गति मिली हुई थी। एक्सेलरेशन का मतलब गति मिली थी। विद एन इंक्रीज इन इंडिजेनस कंपनीज, और इसका जो इंक्रीज़ हुआ है, कई ऐसे कंपनीज हैं जो इंडिजेनस है, कहने का मतलब स्वदेशी कंपनियां भी आगे आ रही थी। इन द इंडियन मार्केट एज वेल, भारत के मार्केट में जो कुछ विदेशी के साथ साथ इंडिजेनस यानी स्वदेशी कंपनीज भी आ रही थी इसके उत्पादन में। The enhanced use of EVs has and utilization of the underlying technology is welcome. जो इन्हांस तरीके से EVs का और यूटिलाइजेशन हो रहा है अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी में। अंडरलाइंग का मतलब जो आधारभूत टेक्नोलॉजी है, आधारभूत जो टेक्नोलॉजी का संरचना है उसके अंदर में जो EVs का यूटिलाइजेशन और इन्हांसमेंट हो रहा है वो स्वागत करने योग्य है। डिस्पाइट द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्यूल इमिशन norms and building these into fossil fuels driven vehicles। लेकिन इसके साथ ही जो कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं यानी ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि फ्यूल इमिशन से रिलेटेड हैं, यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ पर चलने वाली है, फॉसिल फ्यूल्स पर चलने वाली है। कई जो हैं जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में दे आर शिफ्टिंग टू EVs, यानी वे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर रहे हैं यानी शिफ्ट कर जा रहे हैं फ्रॉम पेट्रोल और डीजल। वंस इज एक्सपेक्टेड टू गेन सिग्निफिकेंट नेट इन्वायरमेंट बेनिफिट्स, जिसके वजह से ऐसा माना जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण गेन मिलने वाला है इन्वायरमेंट बेनिफिट के तौर पे। बट इट मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर दैट, इसमें याद करना चाहिए कि दैट लिथियम आयन बैटरी पैक्स दैट फॉर्म द कोर ऑफ टेक्नोलॉजी आर sophisticated devices and these should be no compromise to the inbuilt safeguards। कहा जा रहा है कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसके जो पैक्स होते हैं उस पर टेक्नोलॉजी में का जो है महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होता है, और ये सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेज होते हैं, एक जटिल डिवाइसेज होते हैं, और इसमें किसी प्रकार के सुरक्षा के साथ, सेफगार्ड का मतलब होता है सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। ये इनबिल्ट होना चाहिए, उसमें पहले से होना चाहिए, इस बात का ध्यान। एज एन एनर्जी स्टोरेज साइंटिस्ट एक्सप्लेन इन द हिंदू, एक एनर्जी स्टोरेज साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है हिंदू में, 1 मई की बात है 2022 की। उन्हें क्या कहा है कि बैटरी फायर्स अकर ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। बैटरी फायर क्यों होते हैं? क्योंकि जो हीट कन्वर्ज हो जाता है, बदल जाता है ऑक्सीजन एंड फ्यूल में।
and the controlled manufacturing of devices is specifically required to prevent this। और कह रहा है कि कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेज है उसको कंट्रोल तरीके से करके, मतलब सही तरीके से करके इससे बचा जा सकता है। इंजीनियरिंग हायर सेफ्टी इनटू ईवीज कैन रिजल्ट इन हायर कॉस्ट, बट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लिथियम आयरन बैटरी विदाउट एक्सीडेंट इज रिलायंट ऑन द एब्सेंस ऑफ शॉडी इंजीनियरिंग। कह रहा है कि इंजीनियरिंग अगर इसमें किया जाएगा, यानी और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया जाएगा हायर सेफ्टी के लिए, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, कॉस्ट इसका जो है बढ़ेगा। और जब कॉस्ट बढ़ेगा तो जो लिथियम आयन बैटरीज है विदाउट एनी एक्सीडेंट एक काम करेगा, यानी इसमें थोड़ा सा ये आपको कॉस्टिंग का ये लफड़ाएगा। अगर अगले शॉडी वर्ड का मतलब होता है तुच्छ, लिख लीजिएगा, जिसमें अगर शॉडी अगर इंजीनियरिंग होगा, यानी जो तुच्छ तरह के इंजीनियरिंग होंगे, और कटिंग कॉर्नर अप्रोचेस, और थोड़ा सा अगर शॉर्टकट अपनाने का अगर प्रयास किया जाएगा विथ लॉन्ग टर्म डिवाइस चेंजेज इन लिथियम आयन बैटरीज सच एज यूज ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशल सेफ्टी स्विचेज इट। यानी आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं इसको कि अगर चाहते हैं कि सही से काम करे, फंक्शन करे, तो इसमें आपको कॉस्टिंग बढ़ानी होगी, इसमें कई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशल सेफ्टी स्विचेस वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। स्टिल सम टाइम अवे इन इम्प्लीमेंटेशन द ओनर्स इज ऑन मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटर्स। फिर भी अभी अगर बात करें इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, लागू करने को लेकर के, तो पूरी की पूरी जो ओनर्स है, ओनर्स का मतलब होता है जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, वो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है। रेगुलेटर्स जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, यानी भारत की सरकार जो इसको रेगुलेट कर रही है, खासकर अगर हम परिवहन मंत्रालय की बात करें तो उसके ऊपर है टू इंश्योर दैट, ये बात सुनिश्चित करना कि टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सच एज डिवाइसेस दैट प्रिवेंट एक्सीडेंटल शॉर्टिंग ऑफ द सेल्स and the thermal management solutions among others are made in existing EV systems। अब ये मैन्युफैक्चरर्स का है और ख़ास करके रेगुलेटर्स का है कि आपको स्टैंडर्ड के लिए सर्टिफिकेशन करना है, यानी सच में वो सही है या नहीं है उसको लेकर के सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उसके स्टैंडर्ड को लेकर के, उसके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स को लेकर के, डिवाइसेज जो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं एक्सीडेंटल शॉर्टिंग्स को, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका एक सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है। एंड द थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एमंग अदर्स आर मेड इन एग्जिस्टिंग ईवी सिस्टम्स। थर्मल का मतलब होता है जो हीट पैदा हो रहा है उसको मैनेजमेंट करने के लिए सॉल्यूशन है कि नहीं, जो कि जिसको पालन किया गया है ईवी सिस्टम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिस्टम्स में एंड सप्लाई चेन्स में। अब इसको लेकर के क्या है, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान आया है, उसको देखते हैं। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज सेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विल इशू गाइडलाइंस। उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एक गाइडलाइन जारी करेगा फॉर ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, विच वुड इंक्लूड टेस्ट फॉर कंप्लायंस विद द स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म्स, जिसको लेकर के टेस्ट शामिल होगी जो कि रिलेटेड होगा स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म से, उसका पालन करना होगा। वाइल द रेगुलेशन ऑफ फील्डिंग हालांकि जो रेगुलेशंस हैं, जो कि हालांकि एक ग्रोइंग सेक्टर है, दैट हैज़ शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, जिसमें कई प्रॉमिस किए गए थे, बट रिक्वायर्स एडिक्वेट सेफ्टी नॉर्म्स, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, प्रॉमिस वादा करना होता है, एल्बेट का मतलब क्या होता है, एल्बेट का मतलब हालांकि होता है। तो हालांकि अभी में इसमें कई एडिक्वेट सेफ्टी नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। टू पुट इन प्लेस का मतलब होता है अभी उसको सही जगह पे रखना,
यानी इम्प्लीमेंट करना। पुट इन प्लेस का मतलब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इन एन इम्परेटिव मैन्युफैक्चरर्स, इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरर्स का मतलब उत्पादन करने वाला। एंड अदर कंपनीज इन द EV सप्लाई चेन शुड ऑल्सो प्रोएक्टिवली वर्क इन रिकॉलिंग डिफेक्टिव बैचेज। और जो EV से रिलेटेड जो और भी कंपनियां हैं वो भी अपने जो डिफेक्टिव बैचेज हैं, यानी जो उसको उसने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, उसको वापस बुला करके, यानी वापस ला करके उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इस बात को लेकर के सुनिश्चित कर दिया जाए कि सेफ्टी है और जितने भी जो नॉर्म्स हैं उसको कॉम्प्लायंस करता है, उसका पालन करता है, और फिर से इस तरह की घटना, मिसहैप मतलब होता है दुर्घटना, न घटे। कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में आपने पढ़ा कि भारत सरकार इस मामले को लेकर के प्रोएक्टिव है, चाहती है कि जो भी कंपनियां या मैन्युफैक्चरर्स हैं इसको जितने भी इनके आए हुए हैं मार्केट में उसको फिर से उसका री एग्जामिन करें, और ताकि फिर इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।